सो यार आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, दिस इज अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स। मतलब अभी तक हमने जो जो पढ़ा है ना, जितना सब कुछ, उसका हम कोशिश करेंगे कि हम एक फर्स्ट पार्ट में ही इसको निपटा दें। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट रिवीजन में वो आ जाएगा। क्लियर? कोशिश करूंगा कि मैं आपके टेस्ट पेपर तक की सारी आने वाली सारी चीजों को आज रिवाइज कर दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आप काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज देखी थी, काइनेमेटिक्स में हमने मोशन पैरामीटर्स के बारे में एनालिसिस किया था। वी डिस्कशन अबाउट मोशन पैरामीटर्स। माय डियर, मोशन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड वन इज velocity or speed, and third one is acceleration. So my dear friends, हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को देखते हैं, वेलोसिटी स्पीड को देखते हैं और एक्सेलरेशन को देखते हैं। हमने एक बात और देखी थी कि ये जो मोशन पैरामीटर्स हैं ये डिपेंड करते हैं रेफरेंस फ्रेम पर। ठीक है, मींस according to the observer, the object may be at rest or in motion. This is the most important point. According to observer, object may be at rest or in motion. Or in motion. My dear friends, इसका एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं। According to the reference frame, all type of motion parameters of object, all type of motion parameters of object, motion parameters of object depends on the observer. That is suppose if there's a flat road and one of the skating person, suppose this girl is skating and this is moving with a speed of 10 meters per second. Okay, and one boy is standing on the flat car and this is moving also 10 meters per second. So my dear friends, according to this girl, the boy is at rest or in motion? Tell me, my dear. Rest. So according to girl, the boy is at rest. But suppose this child, very small child, is standing on the ground. So according to this child, this boy is moving 10 meters per second towards right. Yes or no? Yes, sir. And this girl is also moving 10 meters per second towards right. So according to child, the boy and girls both are moving with speed 10 meters per second. So my dear friends, यहाँ पर आपको ये देख करने से पता चल रहा है कि जब गर्ल्स ने बॉय को देखा या बॉय गर्ल्स को देख रहा है तो दोनों के केस में वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट पे। बट चाइल्ड के रिस्पेक्ट में दोनों ही मोशन पे हैं। तो जो भी मोशन पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो किस बात पे डिपेंड करते हैं कि हु इज द ऑब्जर्वर। क्लियर बच्चों?
क्लियर ये पॉइंट? यस सर। सो हम जो अभी मोशन पढ़ रहे हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन। मेरे दोस्तों, रेक्टिलिनियर मोशन मींस होता है व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्म ओनली इन वन डायरेक्शन। व्हेन इज इट ओके अथर? So rectilinear motion when object moves only in one direction. Okay, my dear. Like to and fro motion, rightward or leftward or upward or downward. So बच्चों, in this revision class, we will discuss all type of motion parameters based on the rectilinear motion. If you want to learn in detail, so just go through in detail classes. Okay, my dear? Clear? Yes, sir. So first motion parameters is distance and displacement. As we know, displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. First difference is this. Okay, so distance is length of traveling path. Okay, it is the length of traveling path, and displacement is the minimum distance. It is the minimum distance between initial point to final point. Okay, my dear. So let us see if this is the, suppose this is the initial position of the particle and this is the final position of the particle in xy plane, suppose. So this is the r1 position vector, this is the r2 position vector. Now the particle is follows like this path. So the length of this path is called a distance. Path, अगर इसका नाम AB लिख दिया जाए, so the path AB is called distance. And the displacement is the minimum distance between initial point to final point. This is called a displacement. This is the displacement. And it is vector quantity and its direction is always from initial position to final position. Okay, so in case displacement have another definition, it is the change in position of the object. Position of object. So here it is the initial position vector is r1 and final position vector is r2. So this is the final position vector. And this is the initial position vector. So we can written in here this displacement vector delta s vector is equal to r2 vector minus r. Okay, madam. Now let us see in rectilinear motion. In rectilinear motion, if the object A and B, if the object is moves from A to B in only in one direction,
then the distance covered by the particle is equal to the displacement covered by the particle. But suppose the particle goes from A to B and taking a turn and reach a point C. Then here the displacement is AC and distance is AB plus BC. So we can say that here the distance does not equal to the displacement. And distance is, suppose this length is L1, this length is L2. So distance is L1 plus L2 and displacement is L1 minus. Displacement is L1 minus L2. Okay, my dear. Now we will discuss about the next motion parameters is speed. First of all, one by one. First पहले हम स्केलर देखते हैं स्पीड के बारे में, then velocity के बारे में. So speed is nothing, it is the total distance covered by the particle per unit time. It is total distance covered by the particle per unit time. My dear friends, speed is a scalar quantity and it is the total distance upon total time. स्पीड्स में दो तरीके की स्पीड्स होती हैं. एक होता है एवरेज स्पीड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में. सो एवरेज स्पीड होता है, इट इज v एवरेज which is equal to total distance covered by particle upon total time taken to cover the total distance. So average speed is basically, suppose this is a track and one person is moving in time t1, it cover a distance s1, and in next time t2 it cover a distance s2, and in next time t3 it cover a distance s3. Now in time t4, during a time t4 it cover a distance s4. So then how much amount of the average speed? So in this case the average speed is total distance. How much? It is s1 plus s2 plus s3 plus s4. So this is s1 plus s2 plus s3 plus s4. This is the total distance upon total time. This is t1 plus t2 plus t3 plus t4. Clear, my dear? So this is the total distance upon total time. Now average speeds have three different ways to solve. First one is distance average speed. Second one is time average speed. And third one is varying average speed. Okay, my dear friends, in a distance average speed, suppose this is a track and the party and the boy girl, जो भी तुम लोग समझ लो,
this is moving with the speed v1 for s1 distance. s1 डिस्टेंस में ये v1 स्पीड से चलता है एंड नेक्स्ट s2 डिस्टेंस पर सपोज ये v2 डिस्टेंस से चलता है और नेक्स्ट s3 डिस्टेंस पर ये v3 स्पीड से चल रहा है. सो अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड का कॉम्बिनेशन दिया जाए, दैट मीन्स इफ डिस्टेंस और स्पीड लिखा हो, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में बात हो रही हो, so we use distance average speed. So in this case, the distance average speed is, this is s1 plus s2 plus s3 divided by, and so on, divided by s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3. S1 by V1 is the time taken by the particle to cover a S1 distance. S2 by V2 is the time taken by the particle to cover a T2 distance. And S3 by V3 is the time taken by the particle to cover S3 distance. Clear, my dear friends? And so on. Similarly, in time average speed, अगर बच्चों time average speed में इस time और speed की बात करी गई हो, टाइम और स्पीड की बात करी गई हो, मींस सपोज दिस अ ट्रैक एंड इन दिस ट्रैक द पार्टिकल या बॉय या गर्ल्स आर मूविंग विद अ स्पीड v1 इन टाइम t1. अगर t1 टाइम में वो v1 स्पीड से चलता है, फिर अगले t2 टाइम में, इफ फॉर नेक्स्ट t2 टाइम इट इज मूविंग विद अ स्पीड v2 एंड नेक्स्ट t3 टाइम में वो बेटा v3 स्पीड से चलता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है अलग अलग स्पीड. सो इस केस में जो बच्चों टाइम एवरेज स्पीड होगा, दिस इज टोटल डिस्टेंस विच इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. सो इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फॉर varying एवरेज स्पीड there is a lack of space, so I want to use in here varying average speed. In this case, if velocity is the function of time, if the velocity is a function of time with continuous function, then average speed from t1 to t2 using the formula is integration over, I'm sorry, it's a 1 upon t2 minus t1 into integration over t1 to t2 vdt. For better clarification and detailed analysis, please go through on videos. Clear, bachcho? Yes, sir. Okay. Yes. So let us see one by one examples, which is very important for you. Suppose, first example for distance average speed. Suppose a particle is moving with a speed v1 in half of the distance. Yeah, in half of the distance, it's cover a distance speed v1, and in next half of the distance, it moving with a speed v2. Then how much about of the average speed? तो बच्चों यहाँ distance और speed के बारे में बात करी गई है. So अगर distance और speed के बारे में बात करी जाए तो हमें distance average फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो क्या होता है डायरेक्टली s by 2 plus s by 2 divided by s by 2 v1 plus s by 2 v2. So you can solve and result is, tell me my dear, it is, बोलो यार, 2 v1 v2 upon v1 plus v2 ना. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज द पर्सन इज मूविंग with a speed v1 in t half of the time, half of the total time, and next it is moving with a speed v2 in next half of the total time. So बच्चों अगर यहां पर देखा जाए, वो ये बोल रहा है अपने हाफ टोटल टाइम के आधे सेकंड में वो v1 स्पीड से चलता है और अपने आधे सेकंड में, अगले आधे सेकंड या आधे समय में वो v2 स्पीड से चलता है.
तो एवरेज कितना होगा, तो यहाँ टाइम और स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे v1 इंटू t1, मतलब विच इज t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t/2 प्लस t/2. So this will be equal to v1 plus v2/2. My dear friends, similarly, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाए, if the velocity of the particle is say 3t square plus 5, then find the average speed from t is equal to 0 to t equal to 1 second. Suppose like this question. So simple formula here, the velocity is a function of time, speed is a function of time. So average speed के लिए क्या लिखते हैं, 1 upon t2. t2 कितना है 1 second, t1 कितना है 0 second, तो 1 minus 0 divided by integration from 0 to 1 into v, which is 3t square plus 5 into dt. So जिन भी बच्चों को इंटीग्रेशन में डाउट्स है वो इंटीग्रेशंस के वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है. So v is equal to 1 upon 1 minus 0 is 1. So integration over 0 to 1 3t square dt plus integration from 0 to 1 5 dt. मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 3 into t cube by 3, लिमिट इज 0 to 1 प्लस 5 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 to 1. मेरे दोस्तों यहां से आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी 1 का क्यूब इज 1 एंड 5 into 1 minus 0 which is equal to 6 meter per second. Clear my dear? Yes Dheeraj, tell me. सर हमने 3t स्क्वायर dt में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया t क्यूब बाई 3, हाँ फिर dt का नहीं करते ना उधर. dt की रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं ना, dt के ही तो रिस्पेक्ट में t स्क्वायर का कर रहे हैं. और सर इधर तो हमने 5 dt का t किया है, सो इधर t dt का नहीं करेंगे ना. नहीं, इसको ऐसे लिख नहीं सकते, 5 into t की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना. यस. अब t की पावर 0 है तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर में एक 0 ऐड plus करते 1. हैं और पावर में एक ऐड करते हैं, तो कितना आ गया, 0 plus 1 is 1. यस, सो गॉट इट. क्लियर? यस. एक्सप्लेन, इस इंटीग्रेशन पार्ट को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है क्या बच्चों? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 2 प्लस 1, पावर में जितना है उतना है, एक ऐड कर दो, नीचे भी एक ऐड कर दो, तो 2 प्लस 1 होता है 3 और 3/3 हो गया 3 टी की क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ टी की पावर 0 ले लेते हैं, एक्चुअली 1 है ना, 5 into 1 into dt है, तो 1 को क्या लिख सकते हो, टी की पावर 0 लिख सकते हो, तो टी की पावर 0 क्या हो जाएगा, 0 plus 1 upon 0 plus 1 which is equal to t. So finally upper limit minus lower limit, तो 1 minus 0 plus 5 into 1 minus 0, this is equal to 6 meter per second. My dear friends, मैंने बहुत सारे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस किए हैं ऑलरेडी आपके साथ, तो आप थोड़ा सा पुराने वीडियोस को देख लो जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए. क्लियर? या फिर असाइनमेंट्स को ओपन करके भी देख. चलिए, तो यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड्स के सारे केसेस पढ़े. बच्चों एवरेज स्पीड पढ़ते ही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्पीड, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड. अनिरुद्ध सर पर बर्थ रेट भी तो कम हो गया है. अरे यार तुम नहीं सुधरोगे, कर लो तुम, यहाँ बना दो इस क्लास फिजिक्स की क्लास को शमशान घाट, है ना. यहाँ पे ऐसे ही शांति रहेगी, एक भी बैकग्राउंड में मैं म्यूजिक चलाता हूँ ओम करके, तो ज्यादा बेटर रहेगा, सही रहेगा ना गुरु. थोड़ा बातचीत करोगे, मन लगा रहेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा, शांति में कौन पढ़ता है. चलो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझते हैं. इंस्टेंटेनियस मींस एट पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट.
particular instant. Particular instant means general time. Means अगर limit delta t tending to zero, delta t tending to zero मतलब change in time जो हो वो approximate zero के बाद. If the change in time is approximate zero, then delta, the total distance, which is delta s over delta t, this total distance covered by the particle becomes instantaneous speed. This is ds by dt. This ds by dt is called rate of change in position और डिस्टेंस. ओके, किसी भी फंक्शन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं. ये सब मैं बता चुका हूं आपको. हम इस टाइम पे रिवीजन करा रहे हैं, तो इसलिए हम देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, v बराबर ds ओवर dt. अच्छा बच्चों, एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल एक लेते हैं. फॉर एग्जांपल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से मान लो x is equal to 4t plus 3. Now what is the speed of particle? What is the speed of particle after time t? Suppose अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, after time, या what is the speed of particle at time t is equal to 6 meter per second. ऐसा हो. So here the position is the function of time. Then v is equal to, at particular time पे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे x is equal to dv equal to dx over dt. That means differentiating this function. So बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है? 4. t का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 आता है. तो स्पीड कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब हर एक जगह स्पीड कैसी रहने वाली है? एक जैसी. 4 मीटर पर सेकेंड, एक जैसी ही रहने वाली है. क्लियर माय डियर? सर फिर हमने 6 का यूज कहाँ किया? हाँ, क्योंकि टाइम का फंक्शन ही नहीं बना, तो चाहे 6 पे पूछा जाता या 3 पे पूछा जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. चाहे t इक्वल टू 6 सेकेंड, क्योंकि हर जगह स्पीड एक जैसी है ना. थ्रू आउट द टाइम, जब तक समय है तब तक ये स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला. क्लियर बच्चा? कंफ्यूजन के लिए बता रहे हैं ना. हाँ, सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं. ओके, देखो ये बोल रहे हैं भाई साहब सर रिपीट कर दो. एक बार रिपीट कर देते हैं. एक पोजीशन ये दिया गया है बेटा, पोजीशन. अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन आपको दी गई है टाइम का फंक्शन x इज इक्वल टू 4t प्लस 3, आपसे पूछ रहा है स्पीड बताओ पार्टिकल की एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर पूछा गया है, इसका मतलब इंस्टेंट पे पूछ रहा है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट इंस्टेंट. तो इंस्टेंट मींस कि आपको उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो. ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन में t की पावर 1 है यहाँ पर, तो t की पावर 1 को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1. और नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है ऑलवेज. सो आप इसको डिफरेंशिएट करके आपको 4 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, जो कि टाइम पे डिपेंड, क्या स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है? क्या स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है. तो स्पीड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये हर टाइम के लिए, चाहे t इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए पूछा जाए, t इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए पूछा जाए, t इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए पूछा जाए, हर जगह क्या होगा? यही स्पीड होगा कि नहीं होगा? यूनिफॉर्म. क्लियर? यस सर. सर अगर कोई भी सम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड के बारे में हो तो उसको हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने वाले हैं ना. हाँ, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन
एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको स्पीड बनाना है या फिर वेलोसिटी बनाना है, सो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्लियर? Yes, sir, clear. Yes, sir. ओके, एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई। और अगर उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो इंटीग्रेट कर दो। क्लियर? उल्टा Yes. जा रहे हो तो इंटीग्रेट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। उल्टा जा रहे हो तो इंटीग्रेट कर दो। अगर स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस से आप पोजीशन वर्सेस टाइम में जाना चाह रहे हो तो इंटीग्रेट कर दो। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन, देखिए वेलोसिटी क्या होता है? टोटल वेलोसिटी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, it is represented by v. V is equal to total displacement of the particle, total displacement covered by particle divided by total time taken to cover the distance, taken to cover the displacement. बच्चों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज along the direction of displacement vector. बच्चों वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी जनरली फॉर्मूला यही है, क्या बोलते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एक नए नाम से जानते हैं, चेंज इन पोजीशन के नाम से. सो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और this delta v is equal to this average speed velocity is equal to change in position, this is x2 vector minus x1 vector upon delta t. Clear my dear? Clear my dear? And average instantaneous velocity होती है, instantaneous velocity होती है बच्चों, this is if, फिर से वही limit delta t tending to 0 means particular instant पर delta s vector upon delta t vector becomes instantaneous velocity, this is ds vector upon dt vector. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v velocity is equal to dx vector upon dt vector. Okay my dear friends, let us see the example. एक छोटे से एग्जाम्पल से हम काम करते हैं. सपोज एक पार्टिकल है, a particle is moving initially 10 meter per second towards east. After 10 seconds, it's taking a turn towards right and moving again 10 meter per second. Then find the average velocity of this particle. The average velocity of this particle. Suppose अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब देखो वेलोसिटी ही बता दी इसने, 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ चला गया. अच्छा भैया, ईस्ट की डायरेक्शन में और नॉर्थ की डायरेक्शन में. तो आपसे पूछा क्या गया है कि भैया एवरेज वेलोसिटी बता दी, तो आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए. बस क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो भाई. एक सेकंड में मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां चला, t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पहुंच गया, तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 10 मीटर. और नेक्स्ट 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा?
10 मीटर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये टोटल टाइम हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एक बार फिर से सुनिएगा, द क्वेश्चन इज सेज दैट the car particle is moving 10 meter per second along east direction. After 1 second, it's taking a turn towards right and moving with same speed 10 meter per second square and traveling traveling at a time t equal to 1 second, then find the average velocity of the particle. तो average velocity बराबर होता है total displacement upon total time. Total displacement upon total time. So my dear friends, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ये है दिस इज 10√2 एंड टाइम कितना लगा, तो 1 सेकंड यहाँ और 1 सेकंड यहाँ, टोटल कितना लगा 2 सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 10√2 divided by 2, so this is 5√2 meter per second. This is the average velocity. Similarly, इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लो, if the position of the particle is say called 5t square plus 2t plus 7, then find the velocity of particle after particle at time t is equal to 3 seconds. सपोज ये क्वेश्चन, ठीक है। सो करना क्या है बच्चों, वेलोसिटी पूछी गई एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब इंस्टेंट पे पूछी गई, इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम। तो दिस इज v इज इक्वल टू dx ओवर dt। इसको डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों अब आप बताओ 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10t, 2t का डिफरेंशिएशन 2, और 7 का डिफरेंशिएशन 0, 0। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 10t plus 2 हो गया ना मेरे दोस्तों। वेलोसिटी Yes. क्या हो गया, 10t plus 2 हो गया। वेलोसिटी 10t plus 2 हो गया, तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 32. 30 plus 2, that is called 32 meter per second. Clear my dear friends? yes, चलो भाई आगे देखते हैं, Now note point, in rectilinear motion, if the particle is moving from A to B along same direction, then speed of the particle is equal to velocity of the particle. Velocity of particle. Okay, but let us see, if the particle is moving from A to B, and taking a turn and reach the point C, then suppose in this case it is time t1 and at point C the time is t2. The distance covered by the from A to B is L1 and B to C is L2. Then my dear friends, here अगर वो टर्न ले लेता है तो मैं बोलूंगा पहली बात तो स्पीड does not equal to velocity. Why? Because distance does not equal to displacement. So how much amount of the speed? Speed कितना होगा? Total distance. This is L1 plus L2 upon T2 minus T1. And velocity क्या हो जाएगी बच्चों? L1 minus L2. L1 minus L2 divided by T2 minus T1. Clear my dear friends? बोलो है ना। सो आपने ये देखा कि अगर वो टर्न लेता है तो स्पीड और वेलोसिटीज बदल जाती है, वो दोनों एक जैसी नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोशन पैरामीटर्स है और पक्का देखना टेस्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखते हैं एक्सेलरेशन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एवरेज एक्स, पहले तो लिख ले रहा हूं, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी, टोटल टाइम taken to change the velocity. Okay, my dear friends. Acceleration is a vector quantity. Unit होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेक्टर क्वांटिटी है और डायमेंशन होती है बच्चों इसकी LT-2. बच्चों एक्सेलरेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, एवरेज एक्सेलरेशन बेसिक है, बहुत आसान है. क्या करते हैं हम लोग? एवरेज एक्सेलरेशन change in velocity upon total time taken to change the velocity. That is means average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by total time. This is t2 minus t1. Instantaneous velocity कहता है if limit delta t tending to 0, instant की बात कर रहा है, that means delta v vector upon delta t vector एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा dv वेक्टर अपॉन dt. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, एक नोट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा. इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, सो वी यूज a इज इक्वल टू dv over dt. ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करना, ऑलवेज. क्लियर? ओके. Yes, sir. और अगर बच्चों अगर आपके पास एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन हो या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, सो फॉर्मूला ये यूज करते a इक्वल टू v dv ओवर dx, v dv ओवर dx. क्लियर बच्चों? क्लियर? मैं आपको करके दिखाता हूँ. Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ, देखते हैं. एक एग्जांपल करते हैं. सपोज सबसे पहले तो एक एग्जांपल, एक ट्रक है, ट्रक trucks moving along east with velocity 10 meter per second, taking right turn and moving with the same speed if time taken by truck in turning is 10 meter per second, then 10 second, then find the average acceleration
of truck. ओके माय डियर, सपोज करो ये एक क्वेश्चन मिला है, एक ट्रक है जो ईस्ट की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसके बाद टर्न लेता है राइटवर्ड डायरेक्शन में और मूव करने लगता है सेम स्पीड के साथ. इफ टाइम टेकन बाय द ट्रक इज 10 सेकंड इन टर्निंग, मोड़ते वक्त, टर्न करते वक्त वो 10 सेकंड का समय लेता है, तो आपसे पूछा गया है कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा. माय डियर फ्रेंड्स, ओके चलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखते हैं. सो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी, वो बच्चों v1 10 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स ईस्ट. राइटवर्ड डायरेक्शन में टर्न लिया, राइटवर्ड डायरेक्शन में टर्न लेने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ. मेरे दोस्तों वेक्टर फॉर्म में v1 वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स 10 i कैप. v2 वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स 10 j कैप. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो नाउ द एवरेज, द टाइम टेकन t1 इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो t2 इज इक्वल टू आ जाता है 10 सेकेंड. सो नाउ द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इट्स द v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1. सो वेक्टर फॉर्म में लिखते ही हम देखेंगे कि दिस इज 10 j कैप माइनस 10 i कैप डिवाइडेड बाय 10. मेरे दोस्तों 10 10 हटा दिया जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आ जाता है j कैप माइनस i कैप. मैग्नीट्यूड लिखते वक्त क्या कर सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ i इज 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j, दिस इज आल्सो 1 का स्क्वायर, which is equal to minus 1 into 1 का स्क्वायर. So this should be equal to what? It is √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, so डायरेक्शन जो होगी इसकी, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ j, this is 1, divided by coefficient of i, this is minus 1, which is theta is equal to 135 degree from east direction. ओके या और इसको साउथ ईस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. एट 45 degree. Clear my dear friends? Okay, let us see the next question. Suppose if the velocity of the particle is like this, it is 2t plus 1, then find the acceleration of the particle. Acceleration of the particle. Okay my dear friends, so here the velocity is a function of time. अगर एक्सेलरेशन पूछा गया है तो आपको तुरंत ही इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए dv over dt, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t plus 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, 2t plus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 into 1 plus 0, which is 2 meter per second square. This is the यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया बच्चों? ओके, let us see the another example. Suppose if the velocity of the function is 3s square plus 2s plus 7. Now find the acceleration. 3s ले लो या 3x ले लो, 3x square plus 2x plus 7. Find the acceleration of particle at x is equal to 2 meter. बताओ बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, जरा ध्यान से सुनना कैसे करना. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, v dv over dx. बच्चों सुनो, यहाँ पर ये जो v यूज होता है ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू x नॉट, जो भी यहां पूछा गया. जैसे 2 मीटर है तो इस केस में 2 मीटर लगा देंगे.
अगर 3 मीटर होता तो 3 मीटर लगा देते, 5 मीटर। तो सबसे पहले देखो एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पे वेलोसिटी कितनी होगी? सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? तो एक्सप्रेशन कितना दिया गया है आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। कितना आ गया बच्चों? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। हाउ मच? टेल मी माय डियर फ्रेंड। 4 3s are 12 प्लस 4 प्लस 7, तो 4 प्लस 7 is 11, 11 प्लस 12 is 23. सो मेरे दोस्तों एक बार फिर से आप सुन लीजिए। अगर आपने ये अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, देखो वेलोसिटी यहाँ पर किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है ना, पोजीशन का, है कि नहीं? तो वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन दिया हो तो आपको कैसे यूज करना है? a इक्वल टू वी डीवी ओवर डी एक्स। यहाँ जो v लिखा जाता है, जो भी v यूज किया जाता है, वो v लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट वेलोसिटी। ओके ओके मेरे दोस्तों, अब dv ओवर dx निकाल लो। तो dv ओवर dx कितना होगा भैया? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एक बार। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 डिफरेंशिएट करो, कितना आया? अब आप ही बोलो यार, आप लोग बोलो। 6x plus 2. 6x प्लस 2, वेरी गुड। एट x इज इक्वल टू 2 पर dv ओवर dx कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 40। अरे समझे? समझे? तो भैया 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 एक सेकेंड। सो मेरे दोस्तों यहां पर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 1/सेकंड आती है। तो अब देखिए, अब एक्सेलरेशन में फॉर्मूला क्या है? v dv ओवर dx। तो v कितना है? 23 इंटू dv ओवर dx कितना है? 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 322 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर समझ गए? क्लियर समझ गए? हाँ ना बोलो। हाँ ना, एक बार और सुनो। अगर पोजीशन फंक्शन ऑफ अगर वेलोसिटी फंक्शन का पोजीशन का फंक्शन हो तो फॉर्मूला यूज करना vdv ओवर dx। उस केस में v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है, और एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। dv ओवर dx को तो क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? dv ओवर dx को ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी फंक्शन को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो रेट बन जाता है। क्लियर? ओके सर। अच्छा सुनिएगा यहीं पर, अब अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता कि एक्सेलरेशन मिल जाता, मान लो 3x प्लस 2, और पूछ लेता बताओ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पूछ लेता ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। if initially at x is equal to 0, initially at x is equal to 0, particle start from rest. So my dear friend, acceleration दिया है, velocity पूछ रहा है, लेकिन acceleration function of position है, ध्यान रखो, acceleration position का function। तो अगर acceleration function का position का function है तो हम क्या लिखते हैं? a is equal to, here a is a f of x, so we use a equal to dv v dv over dx. This is equal to 3, how much it is? 3x plus 2. So now written in here, this is 3x plus 2, cross multiply, v dv is equal to 3x plus 2 into dx, integration on both sides. क्वेश्चन में दिया गया है एट x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी 0 हो गई। x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी मुझसे पूछी गई है।
आप इंटीग्रेशन करो। v dv का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, हेल्प करो मेरी। V square by 2. v square by 2 लिमिट इज 0 to v। इसका इंटीग्रेशन बताओ 3, x का इंटीग्रेशन X square by 2. वेरी गुड, लिमिट इज 0 to 2. 0 to 2, 0 to 2। और 2 का, इस 2 का 2x 2x by x dx के रिस्पेक्ट में कर रहे तो x आएगा ना 0 to। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 0 ए प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0। मेरे दोस्तों क्या रिजल्ट नहीं आ गया? ये आएगा रिजल्ट, बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट मतलब 2 रूट 5 या 20, हाँ ना बोलना Yes. पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया। एक और नोट पॉइंट है यहीं पर, समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात आपने देखा एक्सेलरेशन, अगर देखे सुनिएगा, एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनाना है कोई भी, तो इंटीग्रेट कर दो। क्या करो? इंटीग्रेट करो, जैसा कि आपने देखा क्या। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन है और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन बनाना है तो डिफरेंशिएट करना। लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोनों के केस में? a इज इक्वल टू v dv ओवर dx। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इधर से इधर जाते वक्त भी यही फॉर्मूला यूज करना है और वापस आते वक्त भी यही फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? ओके माय डियर? Yes, sir. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम आपको वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और अगर उल्टा जाना है, इंटीग्रेशन करो। अगर रिवर्स में जाना है, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन फंक्शन, तो क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? V dv by dx. नो नो नो, अगर टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन यूज करेंगे dv बाई dt, है ना। टाइम के फंक्शन में dv बाई dt, मतलब अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो dv बाई dt, और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाना है तो भी dv बाई dt। क्लियर मेरे दोस्तों? आप देखो एक स्टार Yes, sir. स्टार नोट क्या कहता है? इफ acceleration is the function of velocity। भैया अगर acceleration function of velocity और आपसे पूछा जाए टाइम, तो आप यूज करना a equal to dv over dt if question is asked about time, or if the question is asked about distance or position, so using formula v dv over dx। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर? Yes, sir. आप प्रीवियस क्लासेस के देखकर इस डायग्राम क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिया भी था, याद आया बच्चों? याद आया आपको? यस सर। अब देखते हैं बच्चों, मोशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इतना सब समझने के बाद बचता है मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। My dear friends, uniform motion means velocity or speed of the particle is always constant. That is acceleration of the particle is 0.
ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट हो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर? Yes, sir. यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल S इज इक्वल टू ऑलवेज फॉर्मूला यूज किया जाता है VT। क्लियर? स्पीड इंटू टाइम और वेलोसिटी। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। पहली बात तो ये समझ, वेलोसिटी of particle is not constant. That is, acceleration of the particle is non-zero. Acceleration of the particle is non-zero. So there is two cases. One is acceleration constant, and other one is acceleration varying. So my friend, मैं वन बाय वन अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा अभी एक फ्लो चार्ट से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं। सो उस तरीके के मोशन को हम लोगों ने क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन वेराइंग होगा। मेरे दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी यूज 3 इक्वेशंस, एक्चुअली 4। v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v square is equal to u square plus twice as, and last one, fourth is snth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। याद है बच्चे ये वाली इक्वेशन, nth डिस्प्लेसमेंट वाली? तो चारों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, चारों यूज कर सकते हैं। वेराइंग अगर होगा, अगर एक्सेलरेशन वेराइंग है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम होगा या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मेरे दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम मिले तो यूजिंग दिस फॉर्मूला dv over dt by dt. और अगर एक्सेलरेशन पोजीशन ऑफ फंक्शन मिले तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस इज v dt। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर? Yes, sir. So this is the simple revision and you can solve your question. Thank you.